أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم. السلام علیکہ یا خاتم النبیین. صلوات اللہ علیکہ یا خاتم النبیین. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسلسلہ بنیان المشید جو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کتاب لکھی ہوئی ہے، اسے ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ یہ ختم کیا تھا. تو بسم اللہ کرتے ہیں. شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، عاشق اپنے محبوب کے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے دشمن سے دور نہ ہو جائے. اب سن لے، دنیا اللہ کی دشمن ہے اور تو اس میں پھنسا ہوا ہے، پھر تو اللہ کا مقرب اور اللہ والا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک مرید نے پانی نکالنے کے لیے اپنا برتن کنویں میں ڈالا تو وہ سونے سے بھرا ہوا نکلا. اس نے برتن کو کنویں میں ہی لوٹ دیا اور حق تعالیٰ سے عرض کیا، میرے محبوب تیرے حق کی قسم، میں تیرے سوا کسی کو نہیں چاہتا. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ حرام طریقے سے دنیا نہ کمائے. مریدوں کے مال پر نظر رکھنا اور لوگوں سے نذران ہدایہ وصول کرنے کے لیے اللہ والوں کی سی صورت بنانا حرام ہے. جس کو توکل کامل حاصل نہ ہو اس کو اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے روٹی حاصل کرنا چاہیے. جس نے اپنے آپ کو ارادت میں ثابت قدم رکھا وہ مراد و محبوب بن گیا. جس نے اپنے کو طلب میں مضبوط رکھا وہ مطلوب بن گیا. جو دروازے پر پڑا رہا، جو اللہ کے دروازے پر پڑا رہا، وہ ایک دن دہلیز پر پہنچ گیا اور اندر پہنچ کر جس کی نیت اچھی رہی کہ اب بھی محبوب کے سوا وہاں کے ساز و سامان و انوار و ملکوت وغیرہ میں دل نہ لگایا، وہ بارگاہ وصال میں صدر نشین ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوئے تو ایک اعرابی دیہاتی کو مسجد میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا تھا، اے اللہ، میں آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں. اور دوسری طرف ایک کونے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ یوں عرض کر رہے تھے، اے اللہ، میں آپ کو مانگتا ہوں. دونوں کی مرادوں میں کتنا فرق ہے، دونوں کی ہمت میں کتنا فاصلہ ہے. آرزویں لوگوں کی عقلوں سے کھیل رہی ہیں، ان کی ہمتوں سے تماشا کر رہی ہیں کہ دنیا سے آگے لوگوں کی عقل و ہمت بڑھتی ہی نہیں. ہر شخص اپنی ہمت کے بازو سے اپنی آرزو اور دلی مقصد کی طرف اڑتا ہے. جب اپنی ہمت کی غایت پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے آگے بھی نہیں بڑھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے ہر شخص اپنی حالت کے موافق کام کر رہا ہے، یعنی اپنی نیت اور ہمت کے مطابق. عزیز من، اپنے ہمت اور ارادے کو اس پر ختم نہ کر کے پانی پر چلنے لگے یا ہوا میں اڑنے لگے، کیونکہ یہ کام تو پرندے اور مچھلیاں بھی کرتی ہیں. اس سے کون سا بڑا کمال حاصل ہوگا؟ تو اپنی ہمت کے بازو سے اس بارگاہ کی طرف اڑ جس کی کہیں انتہا نہیں. عارف کامل کے نزدیک عرش سے لے کر تحت ثری تک کوئی چیز بھی اس خوشی سے بڑھ کر نہیں جو اس کو اپنے اللہ سے ہوتی ہے. جنت اور اس کی نعمتیں بھی اس خوشی کے مقابلے میں جو عارف کو اپنے
परवरदिगार के उनस से होती है, उस राई के दाने से भी छोटी है जो ज़मीन के वसी मैदान में बड़ा हो। मुनम को छोड़कर, मुनम यानी अल्लाह ताला, मुनम को छोड़कर नेमत में मशगूल हो जाना और उससे दिल लगाना नफ्स की खस्त और पस्त हिम्मती और किल्लत मार्फत की निशानी है। मुन्नम का मतलब है नेमत अता करने वाला। आरफीन दोनों जहान से अलग हो गए, वो सिर्फ रब्बुल आलमीन के तालिब हैं, वो अपने नफ्स और औलाद से भी अलग हो चुके। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने या असफ़ा अला यूसुफ, हाय यूसुफ का गम कहा, तो अल्लाह ताला ने उन पर वही नाजिल फरमाई कि तुम कब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहोगे? क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुमको पैदा किया, या यूसुफ ने तुमको रिज्क दिया, या यूसुफ ने तुमको नबुवत अता की? मेरी इज्जत की कसम, अगर तुम मुझको याद करते और गैर के जिक्र को छोड़कर मेरी याद में लगे रहते, तो मैं उसी वक्त तुम्हारी तकलीफ को ज़ायल कर देता। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करने में, याद करने में गलती पर थे, बस आइंदा के लिए अपनी ज़ुबान को उनके ज़िक्र से रोक लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, आप करीब हैं कि आपसे आहिस्ता बातें करूं, या दूर हैं कि ज़ोर से पुकारूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उस शख्स के पास होता हूं जो मुझे याद करे, और उसके करीब हूं जो मुझसे मानूस हो। मैं उसके गर्दन की रग से भी ज़्यादा उसके करीब हूं। बुजुर्गों, अल्लाह वालों ने, अल्लाह उनसे राज़ी हो, फरमाया है कि जो अल्लाह का जिक्र करे वो अपने परवरदिगार के नूर से मुनव्वर होता है, उसके दिल को इत्मीनान और दुश्मन शैतान से हिफाजत नसीब होती है। अल्लाह वालों का कौल है, जिक्र, अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा और अल्लाह ताला की हम्द व सना रूह की शराब, और अल्लाह ताला से हया करना रूह का लिबास है। वो ये भी फरमाते हैं कि राहत पाने वालों ने अल्लाह के उन्स के बराबर किसी चीज़ से राहत नहीं पाई, और लज्जत हासिल करने वालों ने अल्लाह के ज़िक्र के बराबर किसी चीज़ में लज्जत नहीं पाई। बाज़ आसमानी किताबों में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मुझको अपने दिल में याद किया, मैं उसको अपने दिल में याद करता हूँ, और जो मुझको बरमला याद करता है, मैं उसको बरमला याद करता हूँ, और जो मुझे अपनी शान के मुवाफिक याद करता है, तो मैं भी उसको अपनी शान के मुवाफिक याद करता हूँ। इस जमात औलिया को अल्लाह के ज़िक्र ने मशगूल कर रखा है, इसलिए वो दुनिया के काम के ही नहीं रहे। उनका मकसूद वही है, वो समझ चुके हैं कि दुनिया में जिस कदर वाक़यात होते हैं सब अल्लाह के हुक्म व तकदीर से होते हैं, इसलिए वो इन वाक़यात से नागवारी ज़ाहिर नहीं करते, ना दिल से ना ज़बान से। और अगर कभी तकाज़ाए बशरियत या शैतान के असर से किसी हादसे पर नागवारी का असर दिल में आने लगे, तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं, जिससे वसवसा दफ़ा हो जाता है। जो लोग मुत्तकी हैं, उनको शैतान के असर से जब कोई वसवसा आता है तो अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं, जिससे फ़ौरन उनकी आंखें खुल जाती हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हर मोमिन के दिल में एक शैतान बैठा रहता है, जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो हट जाता है, जब वो अल्लाह को भूल जाता है तो वसवसा डांटने लगता है। बुजुर्गों, अगर तमाम आलम के दो फरीक हो जाएं, एक जमात तो मुझे मुश्क अंबर की धुनी दे और आराम पहुँचाए, और दूसरी जमात आग की सुर्ख की हुई कैंचियों से मेरी खाल काटे, तो मेरे नज़दीक न उन्होंने कुछ नुकसान दिया, न उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा दिया, क्योंकि मैं खूब जानता हूँ सब कुछ तकदीर से हो रहा है। जब तुम तकदीर से मुआरज़ा नागवारी की रस्सी को तस्लीम और रज़ा की तलवार से काट दोगे, उस वक्त तुम अल्लाह को सही तौर से याद करोगे, जब ही अज़मत इलाही की तजल्ली दिल पर होगी, वरना ज़िक्र से पूरा नफ़ा न होगा, गो नफ़ा से फिर भी खाली नहीं, क्योंकि तस्लीम और रज़ा भी ज़िक्र ही की कसरत से हासिल होता है। हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह ताला को याद करो यहाँ तक कि लोग तुमको दीवाना कहने लगें, और यह दर्जा तस्लीम और रज़ा ही से हासिल होता है, क्योंकि अहले दुनिया उसी को दीवाना कहते हैं जिसे दुनियावी नफ़ो नुकसान की परवाह ही न हो। आरिफ ज़ाकिर को इस ज़िल्लत की भी परवाह नहीं होती कि लोग उसे दीवाना कहें।
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने तसव्वुफ़ के मुतल्लिक़ हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई की किताब बुनियानुल मुशय्यद से कुछ तालीम हासिल की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये तौफ़ीक दी कि हमने न सिर्फ सीखा बल्कि उससे समझा। और इससे हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह जो ये चीज़ें फरमा चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें और मेरी पिछली वीडियोस जो आपने नहीं देखी अगर, तो उसमें आप देखें जो ज़िक्र के मुतल्लिक़ हैं, तो ये सारी जो बातें हज़रत शेख अहमद कबीर रफ़ाई लिख रहे हैं, असल में ये कुरान पाक की आयात और अहादीस का मफ़हूम है, तर्जुमा है। यानी इसमें कोई भी बात ऐसी शेख अहमद कबीर रफ़ाई नहीं लिख रहे हैं, नहीं बता रहे हैं जो कुरान पाक या हदीस में ना आई हो। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये सारी तालीमात कुरान पाक हदीस के बुनियाद पर है, उसी पर मबनी है। तो अल्लाह ताला हमको सीखने की, समझने की कोशिश अता फरमाए कि हम जो हैं अपनी सही तरह अपनी जदोजहद करें और कुरान पाक हदीस समझने की कोशिश करें। असल में तो अल्लाह ताला हमसे यही चाहता है कि हम अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हों, और अल्लाह के ज़िक्र से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और अल्लाह के ज़िक्र से मुराद है कि हम अल्लाह 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 का ज़िक्र कल्बी करें, सुबह व शाम, फ़जर की नमाज से पहले या फ़जर की नमाज के बाद, या मगरिब की नमाज के बाद, या इशा की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 2 मरतबा ज़िक्र कल्बी आंखें बंद करके अल्लाह 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 करें, या ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िक्र करें। तो ये ज़िक्र करें, या हय्यू या क़य्यूम का ज़िक्र करें। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक दे कि हम ये ज़िक्र करें और हर वक्त इसमें मशगूल रहें, ताकि हमारी नीयतें दुरुस्त हो जाएं, हमारा जो नफ्स है वो तब्दील हो जाए। तो नफ्स मरता नहीं है, नफ्स तब्दील होता है। नफ्स अम्मारा नफ्स लवामा में बदलता है, नफ्स लवामा नफ्स मुतमइन्ना में बदल जाता है। तो ये तब्दीली ये नफ्स होती है। तो इंसान जो है उसका जो मकसद है वो यही है कि अल्लाह का ज़िक्र करे, और तर्क दुनिया से मुराद यही नहीं है। पहले भी जो बातें हो चुकी हैं इस किताब से, उसमें हम ये बता चुके हैं, अर्ज़ कर चुके हैं कि असल जो मकसद है वो ये है कि दुनिया में दिल की मोहब्बत ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के सारे काम काज छोड़ के हम अल्लाह के ज़िक्र मशगूल हो जाएं। तो पंजाबी में एक कहावत है कि हथ कारवल दिल यारवल, यानी जो हमारे हाथ हों वो काम में लगे हों, दुनियादारी में लगे हों, लेकिन हमारा जो दिल हो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो। तो यही जो मकसद है इन बातों का, कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त करें। हमारे नीयत में दुरुस्तगी तब भी आएगी जब हम अपने आप को हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखेंगे। और इस वक्त जो दुनिया के हालात जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, तो इसमें आपसे ये अर्ज़ किया जा सकता है कि दुरूद पाक पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना बावजूद दुरूद पाक पढ़ें, और पाकिस्तान के लिए दुआ मांगें कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए, लुत्फ़ फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, और यहाँ पर अल्लाह ताला अदल व इंसाफ और एहसान की हुकूमत कायम फरमाए, ताकि यहाँ की आवाम की कुछ भलाई हो। और हम दुआ ही कर सकते हैं, हम दुआ के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। न हम में वो सलाहियत है, न हम में वो काबिलियत है कि हम हुकूमतें चला सकें, न हम में ये सलाहियत है कि हम इन बात को तबसरा भी कर सकें, क्योंकि हम में ये सलाहियत नहीं है। न हम में ये हुनर है कि हम हुकूमतें चलाएं, हुकूमतों की बातों पर तबसरा करें। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, और वो ये है कि हम दुरूद पाक पढ़ के 1000 मरतबा या 2000 या 3 या 10,000 मरतबा पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के मज़लूम अवाम के हक़ में दुआए खैर मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला इन सब पर रहम फरमा, करम फरमा, फ़ज़ल फरमा, लुत्फ़ फरमा और मग़फ़िरत फरमा। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। और आखिर में अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशहाली, गिनायत, बमा उम्र खिज़री अता फ़रमाए, आप पर भी अल्लाह करम फरमाए, और आपके अज़वाज पे भी और आपकी औलाद पर भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।